हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैच 25 साइंस एकेडमीज यूट्यूब चैनल, जहां पे आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं MHCET 2021 के लिए रिक्वायर्ड टॉपिक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड. माई सेल्फ तुषार मोंडकर वेलकम्स यू इन फिजिक्स सेशन ऑफ ग्रेविटेशन. ये वही ग्रेविटेशन है जिसके लिए न्यूटन बहुत फेमस हुआ था. एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डूइंग problems based on introduction of gravitation, some simple problems जिसमें आपको बहुत आने वाला है मजा. तो we know that Newton gave us a law where he discussed about two objects that are away from each other at some distance r. Let's say उनका मास है m1 and m2. Then as per Newton, their gravitational force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. Now to remove proportionality sign, we have to introduce constant, and that constant is G. That is universal gravitational constant. Value of gravitational constant is 6.67 into 10 raised to minus 11 and its unit is Newton meter square per kg square. हाँ डियर्स, आपको इस G के वैल्यू को रटना पड़ेगा. It is very important. What about the dimension of G? Dimension of G is m-1 L3 t-2. You may have noticed by now that mass का dimension negative आ रहा है. G is one of the rare quantity which has negative dimension of mass. तो आपको measurement topic के related भी question इसमें मिल जाएगा. Let's move on to some simple formulas. Acceleration due to gravity on the surface of Earth is given by G equals to Gm upon r square, where capital R is nothing but radius of Earth, and this radius of Earth is approximately taken as 6,400 kilometer. If you convert it into meter, it is 6.4 into 10 raised to 6 meter. What if the object is not on the surface of Earth? That means object is not over here, but if it is at certain height, that height, let's say it is h. So the total distance from the center of Earth will be capital R plus h, and it will be denoted by small r. This gh will be given by gm upon r square, that is small r. And small r क्या था? Small r था capital R plus h. So instead of small r, आप capital R plus h भी लिख सकते हो. Then when you take the ratio of gh and g, you will get gm का terms as cancelled, and then आपको मिलेगा r square upon r plus h the whole square. This formula we will be definitely using in today's session. Now let us solve our first question. Two spheres of masses m1 and m2 and are separated by a distance d and are situated in air. तो पहले अपने पास दो ऑब्जेक्ट है. लेट्स से एक ऑब्जेक्ट का मास है m1, दूसरे का मास है m2, एंड ये दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेटेड है कितने डिस्टेंस के साथ? d डिस्टेंस के साथ. बट ये कहां पे सेपरेटेड है? एयर में. तो आवर मीडियम इज एयर and the gravitational force of attraction between these objects is F. तो M2 बोल रहा है M1 को आजा मेरी तरफ with force F, and M1 बोल रहा है M2 को तू मेरी तरफ आजा with force F. If now these two spheres are kept in a liquid, अच्छा तो मीडियम को चेंज करने का काम हो रहा है. तो इनको उठाया मैंने और इनको उठा के किसी नए लिक्विड में डाला. अभी वो लिक्विड कौन सा है मेरे को तो नहीं पता. फिर उन्होंने क्या बोला है कि दिस लिक्विड हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ phi. Let us say उसको हम लोग डिनोट करेंगे phi के साथ. Then the gravitational force, मतलब नया वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको बोलेंगे F डैश. तो F डैश कितना होगा ये आपको निकालना है. अरे कैसे निकालोगे? मतलब लिक्विड हुआ एंड इन स्पेसिफिक ग्रेविटी, मीडियम चेंज हो रहा है. थोड़ा सा बैक जाओगे तो न्यूटन का फॉर्मूला याद आएगा. न्यूटन बाबा ने क्या बोला था आपको? न्यूटन बाबा ने बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स is equals to gm1 m2 upon what? Upon r square. What do you notice? There is no term that is associated with the medium. अरे अगर आपके पास मीडियम का कोई टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड ही नहीं है. तो ये आपके साथ स्कैम हो रहा है. क्या हो रहा है आपके साथ? स्कैम. आपको फंसाया जा रहा है कि आप सोचो अलग, बट एक्चुअली सोचने की जरूरत ही नहीं है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अर्थ सडनली श्रिंक्स to half of its present side,
प्रेजेंट साइज, तो पहले अर्थ का कुछ साइज होगा, अभी अर्थ क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, हाफ श्रिंक हो रहा है, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। अच्छा मान के चलो कि पहले अर्थ का मास m था, हाँ अभी जब वो श्रिंक होगा तो उसका मास थोड़ी ना हाफ होने वाला है, वही ऑब्जेक्ट हम लोग छोटा कर रहे हैं तो मास तो सेम रहेगा, तो मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो m आपका रहेगा कांस्टेंट, उसको मैंने कांस्टेंट लिख दिया, बट डेफिनेटली रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सो वी कैन से दैट r2 विल बी r1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर थोड़ा सा बैक जाके रिवाइज करें तो आपको याद आएगा g इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर होता है, गुड मॉर्निंग अपॉन r स्क्वायर, गुड मॉर्निंग याद रखोगे तो चीजें इजी हो जाएगी। अभी क्या क्या कांस्टेंट है, एक मेथड सिखा रहा हूं आपको जो बहुत काम में आने वाला है इन फ्यूचर क्वेश्चंस आल्सो, सिर्फ ये चैप्टर के नहीं बाकी चैप्टर्स के भी। क्या ट्रिक है, जो भी कांस्टेंट है उनको प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट करो। अरे अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हो तो कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी में क्यों नहीं, कर दो ना उल्टा चीज। तो g कांस्टेंट हुआ, m कांस्टेंट हुआ, तो दोनों को कन्वर्ट कर दो प्रोपोर्शनैलिटी में, देन वी गेट g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अभी ये आपको रिलेशन मिलने के बाद एक फंडा यूज करना है, आपको गाना गाना है 1 2 का 1 2 या फिर 1 2 का 2 1, वो है ना अपना 1 2 का 2 4, उसी गाने को हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। कैसे, देखो अगर समझो a क्वांटिटी है जो b को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कैसे डायरेक्टली, तो अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हम फंडा यूज करेंगे 1 2 का 1 2, मतलब देन इफ वी टेक रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2, देखो 1 2 आया, that will be equals to b1 upon b2। बट अगर यही चीज हुई कि समझो a दिया है आपको a and it is inversely proportional to b, then what, तो आपको यूज करना है 1 2 का 2 1, मतलब a1 by a2 हो जाएगा b2 by b1। देखो क्या हो रहा है 1 2 का 2 1, हम लोगों ने उल्टा किया ना इसको। अभी यही फंडा हम लोग यूज करेंगे जी वाले केस के। अभी देखोगे तो कैसा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखेंगे 1 2 का 2 1, तो ये r2 का r1, बट स्क्वायर को मत भूलना, डोंट यू डेयर टू फॉरगेट दैट स्क्वायर, मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो r2 by r1 स्क्वायर हो जाएगा। अभी आपको r2 कितना दिया है, r2 r1 by 2 दिया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे r1 by 2 अपॉन r1 और उसका स्क्वायर, तो ये r1 कैंसिल एंड 1 by 2 का स्क्वायर क्या होता है 1 by 4, तो आप यहाँ पे 1 by 4 लिखोगे। यहाँ पे क्या आया g1 by g2 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे g2 हो जाएगा 4 टाइम्स g1, मतलब 4g। आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, W is the weight of a man on the surface of earth. What would be his weight W dash if he goes to a height h that is equals to radius of earth। मतलब पहले इंसान कहाँ पे खड़ा था, पहले इंसान खड़ा था अर्थ पे, अरे ये जाने दो, इग्नोर इट, ये अर्थ था और इंसान कहाँ पे खड़ा था, इंसान अर्थ पे खड़ा था, ओके, तो उसका वेट कितना था W था। फिर वो क्या किया, इंसान हवा में पहुंच गया। अभी वो कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स में हम लोग किसको भी किधर भी पहुंचा सकते हैं। तो ये इंसान अभी पहुंच गया है एट सम रैंडम हाइट दैट इज h, बट वो रैंडम नहीं बोला है, उन्होंने ये भी बोला है कि दिस हाइट इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो h का वैल्यू r से इक्वल हो गया। अभी आगे क्या करेंगे हम लोग, तो अभी मुझे ये नया वाला वेट निकालना है, तो नए वाले लोकेशन पे उसका W डैश कितना होगा वो। अभी एक कंसेप्ट इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इफ वी गो अपवर्ड इन द स्काई, या फिर अगर आपका हाइट इंक्रीज हो रहा है तो ग्रेविटी डिक्रीज होता है। एक और चीज नोट कर लो, ग्रेविटी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आप ऊपर जाओगे तो भी ग्रेविटी डिक्रीज होगा, नीचे जाओगे तो भी डिक्रीज होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट डोंट यू वरी गाइस, कैच 25 ने आपके बारे में सोचा है, हम लोग ये कंसेप्ट भी नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करने वाले हैं। अभी देखो क्या होने वाला है, जब वो हाइट पे जाता है तो उसका ग्रेविटी चेंज हो जाता है, वो ग्रेविटी हम लोग gh से डिनोट करेंगे। तो मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला सिखाया था आपको, gh by g which was equals to r square upon r plus h the whole square। अभी क्या करना है आपको, इनको कंबाइंड एक ही टर्म में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो r upon r plus h, बट हाइट क्या है, हाइट r जितना है, तो हो गया। सो ये हो जाएगा r upon 2r का होल स्क्वायर, r कैंसल, अगेन आ गया देखो 1 by 4,
तो 1/4 आने से डरना नहीं है। बट अभी तुम बोलोगे सर ये तो ग्रेविटी चल रहा है ना, और मतलब जी के टर्म्स में, और हमें ऑप्शन दिए वेट के टर्म्स में, तो तुम्हें जी को वेट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? बहुत सिंपल सा फंडा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये mgh हुआ, ये mg हुआ, का हुआ 1/4। अलाउड है ना मैथमेटिकली, क्योंकि अगर मैं mm को कैंसिल कर दूं तो मुझे ऊपर वाला स्टेप मिलेगा। mgh हुआ आपका w dash. What about mg? It is w. And what do you get? 1/4. w को वो साइड शिफ्ट करोगे तो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सी, that is w dash equals to w/4। तो अगर किसी को लाइट वेट फील करवाना है अपने आप को, तो उतने हाइट पे आप चले जा सकते हो। एंजॉय योर राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट इज 2 सेकंड। तो आपके पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट स्टेशनरी है, चालू नहीं है। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? Acceleration 0. What would be its time period when the lift moves upward with an acceleration? तो पहले केस में लिफ्ट एकदम शांत है, स्टेशनरी है। सेकेंड केस में लिफ्ट जा रहा है ऊपर की तरफ। तो पहले केस में आपका जो भी टाइम पीरियड दिया है, मैं उस टाइम पीरियड को यहाँ पे नोट डाउन कर लूं, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ओके, या फिर इसको t1 बोलेंगे क्योंकि अपने को नया टाइम पीरियड निकालना है, जिसको बोलेंगे t2। ओके, पहले केस में एक्सेलरेशन नहीं है, बट सेकंड केस में एक्सेलरेशन है g/4। अच्छा, ये सम सॉल्व करने के लिए आपको पेंडुलम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड नहीं है। मतलब वो फॉर्मूला आपको ऑसिलेशन जैसे चैप्टर में सीखने को मिलेगा, बट फॉर्मूला तो सब चैप्टर के मालूम होने चाहिए, तभी तो सीईटी अच्छे से जाएगा। सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/j। लिख लिया मैंने फॉर्मूला। अभी क्या नोटिस किया आपने यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म्स कौन से वही ना, ये दिमाग में आना चाहिए। कांस्टेंट टर्म को उड़ाना सीखो। एक बार आप सीख गए तो आप हवा में उड़ोगे मार्क्स के साथ। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। 2 नंबर कांस्टेंट, पाई वो भी नंबर कांस्टेंट, l लेंथ तो चेंज नहीं हो रहा है वो भी कांस्टेंट। तो सारे कांस्टेंट चीजों को कन्वर्ट कर दो प्रोपोर्शनैलिटी में और आपको क्या मिलेगा? t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g। मिल गया ना? एंड सिंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है रे? 1/2 का 2/1। तो t1, अरे इसको इरेज कर देते, t1/t2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g2/g1। हो गया। अभी आगे आपको g1 का तो वैल्यू ठीक है मिल जाएगा, आपका अर्थ का ही है, ग्रेविटी का, तो g का वैल्यू तो नहीं प्रॉब्लम है। बट व्हाट अबाउट g2 का वैल्यू? वो तो लिफ्ट जब मूव होगा तभी का निकालना है। अभी वो वैल्यू कैसे निकालोगे? गाइस एक चीज याद रखना, जब भी आप लिफ्ट में ट्रैवल करते हो, आपने नोटिस किया होगा कि अगर लिफ्ट सडनली ऊपर जाता है तो आपको कुछ हेवी फील होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये क्यों होता है पता है? आपका एपरेंट वेट बढ़ता है। अगर यही लिफ्ट सडनली नीचे जाए तो आपका एपरेंट वेट घटता है। ये सेम चीज आपने अगर इमेजिका में गए हो या फिर एसएल वर्ल्ड में गए हो, डेयर टू ड्रॉप में आपने ये ट्राई किया होगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज्यादा फील होगा। अच्छा, बट हम लोग को क्या सर ये भी सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, अपने पास ट्रिक है। अगर कोई चीज अपवर्ड एक्सेलरेशन के साथ मूव होती है, ओके लेट्स से इफ ऑब्जेक्ट moves with upward acceleration, then उसका g डैश का वैल्यू हो जाता है, मतलब नया वाला वैल्यू, हम इसको g2 भी लिख सकते हैं, नो इश्यू विद दैट, विल बी इक्वल्स टू g प्लस a। तो अपने केस में सिंस अवर लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, हमें एक्सेलरेशन को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? g/4। सॉल्व करो, 4 वो साइड लेके जाओ, 4g प्लस g, दैट विल बी 5g/4। g डैश आ गया। अभी सर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ये हो गया। व्हाट इफ लिफ्ट कम्स डाउनवर्ड? तो अगर आपका लिफ्ट डाउनवर्ड आ रहा है, इफ लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन डेफिनेटली, देन g डैश विल बी इक्वल्स टू g माइनस a। ओके, अभी देखो ये आपका 5g/4 वैल्यू आ गया, तो अभी मेरा t1/t2 में मॉडिफाई करता हूं, तो t1/t2 इक्वल्स टू क्या हुआ रे? g2 का वैल्यू 5g डिवाइडेड बाय 4 अपॉन में क्या था? g1 तो g था नॉर्मल, g कैंसल, तो ये हो जाता है √5 और 4 स्क्वायर रूट के बाहर आके 2 हो जाता है। अभी आपको t2 निकालना है, तो t2 को वो साइड लेके आओ, सो अवर t2 विल बी इक्वल्स टू 2 ये साइड आ गया, करेक्ट? सो 2 टाइम्स t1 अपॉन √5।
ओके अभी लेट मी चेक कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अरे हाँ, हम लोगों ने T1 तो पुट ही नहीं किया। देखो ये ऐसे मिस्टेक हो सकते हैं। तो T1 के वैल्यू को पुट करना है, फटाफट फटाफट पुट करो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स T1 का वैल्यू 2 अपॉन √5। आंसर क्या हो गया, 4/√5। ऑप्शन बी, फटाफट क्लिक करके आगे जाना है। The densities of two planets are in the ratio of 2:3। तो पहले मुझे डेंसिटीज के बारे में दिया है, फटाफट लिख लेता हूं उसके बारे में, ρ1/ρ2 2/3। एंड रेडियस का रेशियो कितना दिया है गाइस आपको, तो रेडियस मतलब प्लैनेट का रेडियस है, तो r1/r2 दिया है 1/2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। एट सरफेस मतलब हम लोग का ऑब्जेक्ट सरफेस पे ही है दोनों केस में, जस्ट आपको रेशियो निकालना है। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो मतलब आपको g1/g2 कितना होगा वो निकालना है। अभी पहली बात तो मैं g का फॉर्मूला याद करता हूँ, g=gm/r²। बराबर। अभी देखो आपको मास के बारे में कुछ पता है क्या, नहीं। और एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों को मास को रिप्लेस भी करना है ना डेंसिटी के टर्म्स में। सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिप्लेस मास बाय डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इधर g हो गया, इधर ρ हो गया, इधर v हो गया, इधर r² भी हो गया। बट अभी सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली डेंसिटी के लिए। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे और वॉल्यूम को कांस्टेंट कंसीडर करोगे तो गलत हो आप, क्या हो, गलत। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूला में भी तो रेडियस छुपा है, उसको निकालो ढूंढ के। एंड दैट विल बी, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ अपॉन r²। अभी देखो कुछ r कैंसिल हो जाएंगे, जैसे नीचे का पूरा r² चला गया और ऊपर का 2r चला गया। तो आपको एंड में फॉर्मूला क्या मिला, 4/3 पाई इंटू आर। एंड देन फिर आता है आपका प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इतने सम्स लिए मैंने, सब में वो प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट आ रहा है। तो आप अगर उसको सीखोगे तो आपको बहुत हेल्प पड़ेगी। अभी देखो G, कैपिटल G कांस्टेंट, रो आपको वेरी हो रहा है तो उसको कंसीडर करना है, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। सो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल, ओहो ये नहीं, रो, एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अभी पहले बात तो डेंसिटी के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, तो 1/2 का 1/2, क्या बोला, 1/2 का 1/2। सो g1/g2 इक्वल्स टू ρ1/√2 इनटू r भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो r1/r2। अभी आगे तो यार सिंपल कैलकुलेशन है, 2/3 इंटू 1/2, 2 कैंसल, 1/3 डन। फटाफट टिक मार्क कर दो फटाफट। नेक्स्ट, two identical spheres each of mass m and radius r are separated by distance 3r। तो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास है m, दोनों का मास सेम है, तो मैंने दोनों का मास कंसीडर किया, और इन दोनों ऑब्जेक्ट का रेडियस क्या है, r। आपको मालूम होना चाहिए जो डिस्टेंस में न्यूटन के फॉर्मूला में लेता हूं वो सेंटर टू सेंटर मेजर करते हैं, तो इसीलिए मुझे सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे क्या बोला है, रेडियस r है, मैंने r लिखा। मुझे क्या बोला है, रेडियस r है, मैंने r लिखा। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बोला है, 3r। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बेसिकली two identical sphere of each mass m and radius r are separated by distance of 3r। तो चाहिए तो हम लोग यहाँ पे 3r, आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ओनली, लेट्स चेक। तो ये 3r हो गया। अभी आपका कंसेप्ट क्या होता है, सिंपल सा फंडा है, ज्यादा मतलब लाइक डिस्टेंस से कुछ मैटर नहीं पड़ेगा। आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। अगर आप याद करोगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 3r का स्क्वायर। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपके पास आएगा G m1 m2 और आप लिखोगे 9r²। बट यहाँ पे आप फंस जाओगे। आपके पास 1/r² ऑप्शन भी उन्होंने दिया होगा, आपको लगेगा कि 1/r² करेक्ट है, बट फॉर इट टू हैपन आपको सारी चीजों को कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। एंड किसी भी टर्म में आपका रेडियस नहीं आना चाहिए। बट अभी थोड़ी देर पहले देखा था हम लोगों ने कि मास में रेडियस आता है। कैसे, क्योंकि हमको पता है कि मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम क्या होता है, so it will be 4/3 pi r³। so can you agree with me कि इस पर्टिकुलर मास का r³ आएगा और इस पर्टिकुलर मास का भी r³ आएगा। तो अगर f को देखने जाओगे आप तो उसमें ऊपर एक r³ आएगा, बाजू वाले मास के साथ r³ आएगा, और अपॉन में क्या है, अपॉन में r² है। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो r³ 3 3 ऐड होके r6 बनेगा,
अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर आएगा आर रेस टू 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, आर रेस टू 4। तो कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको इन बिटवीन मिलेंगे एंड आपको लगेगा कि आ गया मेरा आंसर, बट नहीं, आपको डेप्थ तक चेक करना है एंड यू विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स इट बाय प्रैक्टिस। नाउ don't you forget to like, share and subscribe if you have enjoyed this video. We will continue with further sums in next topic. Thank you.